Yesterday in the session, I had started off this chapter that is financial markets, right? And kal jo hai, we had done what is the meaning of financial markets? It's a platform where the buying and selling of the securities take place. Okay, this is the definition. Then first of all, as per the requirement of the business, we require business loans or finance for a short period and also for a longer period. So, when it comes to the shorter period, that is before 1 year, if we require, then we go for the money market. And money market instruments are call money, T bill, commercial paper, commercial bill, and certificate of deposits, right? And then we come to the segment capital market, यानी कि जहां आपका वेल्थ क्रिएट होता है. हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो जहां आपका इक्विटी कल्ट है, जहां आपका वेयर द बिजनेस is able to procure the finance by issuing shares or debentures. तो कैपिटल मार्केट को हम लोग अगेन वी डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स. फर्स्ट इज द प्राइमरी मार्केट and the second is the secondary market or the stock exchange. When it comes to the primary market, it means it is the market where only selling takes place. And there is a direct interaction between the company and the investors. जहां कंपनी अपनी पहली बार when it is issuing the shares, it sells to the consumers or to the investors directly. Whereas आपका जो secondary market है, that is where already जो existing हमारे securities है, where it is a shares, debentures, इनको हम खरीद या बेच सकते हैं. If we are already holding, we can sell it off. And if we don't hold it, if we want to buy, then we can buy it. वो हमारा secondary market है, यानी कि हमारा, in another words, the stock exchange, right? For the primary market, we can go through the prospectus. That is when the companies issue the prospectus through the advertisements, or electronic modes, offer for sale through the private placement agencies, stock brokers, or it may be issuing the stock as in proportion to the ratio you are already holding in that company या उस कंपनी के सब्सिडाइरीज में कहीं पर अगर है तो. अब when we come to the secondary market, that is where you are already trading, जहां हमने जो है अपनी लिस्टिंग अपनी कंपनी की लिस्टिंग कर दी है, वहां पर say if a person has to buy or sell the shares. This question is a very, very, you can say, repeated, and also it is a 4 marker or a 6 marker. Very important question. You can expect कि इस चैप्टर से ये वाला और आने वाला एक और कंसेप्ट, ये दो आप मतलब बिल्कुल पक्का यकीन से यू कैन टेक इट कि हाँ ये तो आएगा ही आएगा, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू द ऑनलाइन ट्रेडिंग, आपके पेपर में अब नाउ द क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फर्स्ट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, write the procedure for online trading. The very first question is the process, the procedure for online trading. And second is there is one advertisement also. There was a मतलब कि a waiter, question है ये. There was a waiter. A very famous cricketer had gone to the restaurant. There, the waiter was very curious to know how
the cricketer invests his money, to the cricketer told him about online trading. Explain the steps that the waiter has to follow for an online trading. एक बड़ा मतलब कि क्वेश्चन है. वन इज डायरेक्ट, जहां पर आपका डायरेक्टली यू आर हैविंग द क्वेश्चन, जहां आपका डायरेक्टली यू आर मतलब कि आपके पास है राइट द ऑनर, या फिर दोनों में क्वेश्चन वही है प्रोसीजर, या तीसरा तीसरा पहला था अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सेकंड इज अ केस बेस्ड स्टडी, एंड थर्ड वन इज यू मे बी गिवन टू ऑप्शंस, मतलब पहले दो आपको बता दिए हैं एंड देन यू हैव टू राइट द नेक्स्ट 3 or 4 steps, right? You may be given 2 steps in the case study and then you have to write the next 4 steps. So these are the 3 different kinds of questions that you can expect from this particular topic, that is online trading. अब क्या है, अब आप यहां पर देख सकते हो ऑन द लेफ्ट आई हैव मेड वन पिक्चर, एक पिक्चर बना रखी है जिसमें लिखा है बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट and share market. This is actually the procedure. I'm not going to confuse you. अब क्या होता है कि you have to first of all have 2 things. पहला क्या है, आपको आपके पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है? You need to have a bank account, right? From the bank account you will open एक depository participant होता है. There are many depository participants. All the banks, commercial banks, brokers, ऐसे कई आपके depository participants होते हैं. उनके पास you have to open a demat account. आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीमैट अकाउंट? डीमटेरियलाइजेशन. डीमैट अकाउंट इज द acronym for dematerialization, right? 1 marker question you can expect. अब आपको सबसे पहले you should have your पैन कार्ड. ये आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होनी चाहिए, और वो है आपका पैन कार्ड. यू शुड हैव अ पैन कार्ड. पहला, इट इज मैंडेटरी. व्हेन यू हैव द पैन कार्ड आपके इनकम का और अदर डिटेल्स आपका दे देता है. देन यू विल बी हैविंग योर अदर मतलब की डॉक्यूमेंट्स, like it may be your residential proof and all other, maybe an Aadhaar card. अब आपको एक ब्रोकर यानी कि एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आपको एक ब्रोकर लेना है. नाउ द ब्रोकर्स कैन बी रजिस्टर्ड विद स्टॉक एक्सचेंज. आपको वैसा एक ब्रोकर. नाउ द ब्रोकर इज नॉट समवन अ पर्सन, इट कैन बी इवन एन इंस्टीट्यूशन. लाइक देयर इज वन फेमस ब्रोकर आपका है कार्वी. तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल find them. आजकल तो पेटीएम इज देयर, ऑल द बैंक्स आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट वे. उसमें आपको अपना डीमैट अकाउंट खोला ना. व्हाट इज डीमैट अकाउंट? पहले आपका जो है अर्लियर, अब इसमें एक क्वेश्चन आपके आता है सुप्रिया वाला, सुप्रिया करके क्वेश्चन आता है. पहले क्या होता था, व्हेन अर्लियर पीरियड द शेयर्स यूज्ड टू बी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट हम बोलते थे. हम उनको क्या बोलते थे? शेयर सर्टिफिकेट. और ये जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, दे लुक जस्ट लाइक द सर्टिफिकेट व्हाट यू ऑल हैव. उसमें लिखा होता है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट द बियरर, उसमें आपका नाम नहीं होगा, द नेम विल नॉट बी गिवन, द बियरर ऑफ दिस सर्टिफिकेट होल्ड्स इतना, मतलब कि आपकी जो भी वैल्यू है वो उसमें लिखा होता था.
right? And it would be in the physical form, that is a paper form. अब वो जो सर्टिफिकेट होता था उसके कई नुकसान हो जाते थे. फॉर एग्जाम्पल, वो खो जाता था. हो सक देन पीपल उसको फोर्ज कर देते थे, उसमें जीरो बढ़ा देते थे. देन देयर वर अदर, मतलब कि माल प्रैक्टिसेस थे, ब्रोकर्स उसको अपने पास रख लेते थे. So due to many malpractices, forging, lost, मतलब कि उसके वजह से the physical form of certificate was removed and now the same certificate is kept in an electronic form. यानी कि वो आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें दिखाई देगा as इलेक्ट्रॉनिक वे. आप उसका प्रिंट वेट नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वे में कि आपके पास कितने शेयर्स हैं उस अकाउंट में दिखाई देगा. हाउ मेनी शेयर्स यू आर हैविंग ऑफ विच कंपनी, ऑफ व्हाट यूनिट्स, ऑफ व्हाट, मतलब आपने कितने में खरीदा था, आज उसकी क्या वैल्यू है. नाउ ऑल दीज आर इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इवन इफ पीपल जिनके पास ओल्ड सर्टिफिकेट्स हैं, नाउ दे कैन इवन चेंज इट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू डीमटेरियलाइजेशन. मान लो मेरे पास है, so I can go to the depository participant and I can ask them to convert it into a मतलब कि electronic form. So the electronic form of holding the securities is called as dematerialization, यानी कि डीमैट अकाउंट. आ गया? तो अब सबसे पहले आपने, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपने एक ब्रोकर को यूज किया, वहां पर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया. नाउ what will happen is, for opening the demat account you would require your KYC documents, that is PAN card, Aadhaar card and other. PAN card is mandatory. अब आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया. नाउ यू कैन प्लेस एन ऑर्डर. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर? मतलब अब आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, राइट? यू फील दैट दिस कंपनी शेयर यू वांट टू बाय. अब आप जो हो अपने, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, नथिंग इज इन द फिजिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यू विल बी प्लेसिंग द ऑर्डर. यू विल आस्क द ब्रोकर, मतलब आप उनको, आप उस कंपनी के नाम के आगे जितना भी आपको शेयर्स खरीदना, यू वुड मार्क इट. एंड ऑन द अदर एंड, कंप्यूटर के दूसरे एंड पर ब्रोकर क्या करेगा? उस ऑर्डर को देखेगा, राइट? Now you have ordered say 10 shares of Reliance India. You have ordered 10 shares of Reliance India. तो वहां पे on the other hand जो ब्रोकर का जो कंप्यूटर है उसमें रिफ्लेक्ट होगा that this person has ordered for 10 shares of broker, sorry, of Reliance India. तो वो क्या करेंगे? They would take that into account. अगर आपने प्राइस कोट किया है, there are two ways. एक होता है आपका मार्केट प्राइस, दूसरा आपका होता है आप कोई प्राइस को कोट करो. मतलब मान लो अभी उसकी कीमत 1000 है और आप चाहते हो 900 पे खरीदना, राइट? तो अगर आपने मार्केट प्राइस पे खरीद रहे हो, इमीडिएटली आपका एग्जीक्यूट हो जाता है. लेकिन अगर आपने बोला कि नहीं मुझे 900 पे खरीदना है, तो जैसे ही उस कंपनी के शेयर्स 900 में आएंगे, इमीडिएटली वो जो ब्रोकर एंड में व्हाट दे वुड डू इज दे वुड ब्लॉक दैट 10 शेयर्स, आपके जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे और वहां ऑर्डर प्लेस हो जाएगा कि इस कंपनी के 10 शेयर्स हैज टू बी ब्लॉक टू दिस पर्सन, राइट? नेक्स्ट, अब वो क्या करेंगे? आपको इमीडिएटली एक रिसीट भेजेंगे. दे विल सेंड यू एन एक्नॉलेजमेंट, आपको ट्रांजैक्शन का रिसीट भेजेंगे दैट योर 10 शेयर्स हैव बीन ब्लॉक्ड. और जैसे ही आप कंफर्म कर दोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? यानी कि वो शेयर्स जो हैं दैट वुड बी ब्लॉकिंग से वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए. एंड इट वुड बी रिफ्लेक्टिंग इन योर डीमैट अकाउंट. रिलायंस इंडिया का शेयर इस पैन नंबर के अकॉर्डिंग, इस मतलब कि ट्रांजैक्शन आईडी के अकॉर्डिंग इतने बजे इतने मिनट पर जो है इट हैज बीन ट्रेडेड. Now, the next is, that is last. You have the settlement
और आपका जो सेटलमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर बोर्ड्स, 1 मार्कर, ये हमारा जाता है ट्रेडिंग प्लस 2 डेज। ट्रेडिंग प्लस 2 डेज यानी कि जो सेटलमेंट होती है खरीदने की, वो हमें 2 दिन के अंदर जो है हमारा जो पैसा है दैट हैज टू बी शोन। एंड इफ वी आर सेलिंग इट आउट, ये तो मैंने खरीदने का बताया, इफ आई एम सेलिंग इट आउट, अगर मैं उसको बेच रही हूं, तो देन अगेन द सेम थिंग, T+2 डे, ट्रेडिंग प्लस 2 डेज में दैट विल, वो जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में दिखेगा। If I have sold, the money will be reflecting in my account. If I have bought, the shares will be reflecting in my account. और ये जो मतलब कि पूरा हमारा सिस्टम है, इट हैज टू बी डन बिटवीन, मतलब विद इन T+2 डे। टी मतलब जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं +2 डेज। नाउ रिमेंबर एक चीज और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्राइडे को जो हमारा ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इट ओपन्स इन मॉर्निंग एंड इट इज अप टू 3:55 PM। अभी 3:32 हो रहे हैं ना, तो 3:55 तक ही रहता है। एंड सैटरडे एंड संडे, इट इज ऑफ। आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैटरडे एंड संडे इट इज ऑफ। तो यानी कि अगर मैंने आज कोई शेयर खरीदा या बेचा है, तो दैट मीन्स आज मेरा ट्रेडिंग है, लेकिन कल और परसों दिन को माना नहीं जाएगा। सैटरडे संडेज विल नॉट बी काउंटेड, इट वुड बी मंडे ट्यूसडे। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? T+2 का मतलब है ट्रेडिंग प्लस 2 डेज के अंदर एवरीथिंग। अगर मैंने बेचा है, तो the money should reflect in my demat account. If I have bought it, the shares should be reflecting. But in case I have bought it in, if I have मतलब कि bought it on Friday, then Friday मतलब Saturday Sunday जो है वो ऑफ होता है। Only on specified days of what you call as holidays, कुछ स्पेसिफिक डेज होती हैं, या दिवाली के दिन भी आधे 1 घंटे के लिए आपका स्टॉक एक्सचेंज खुलता है। नॉर्मली ऑल द पब्लिक हॉलीडेज आर हॉलीडे एंड सैटरडे संडेज आर ऑफ। तो जो T+2 का जो साइकिल जाएगा, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर इसलिए बता रही हूँ। तो दैट मीन्स इफ देयर इज सैटरडे संडे द नेक्स्ट डे, देन द 2 डेज आर मंडे एंड ट्यूसडे। तो आपका सेटलमेंट का पीरियड हो जाए। वैसे तो आजकल ऑनलाइन में इट इज इमीडिएट। मैं मॉर्निंग अराउंड, मतलब मैं नॉर्मली 2-2:30 बजे के आसपास में आई ट्रेड इट, तो बाय इवनिंग इट रिफ्लेक्ट्स इन माय अकाउंट नॉर्मली। बहुत कम होता है, इट इज ऑन द नेक्स्ट डे। सो दिस इज द प्रोसीजर, प्रोसेस, स्टेप्स फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब कि मतलब कि ये आपका इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? वेदर इट कम्स एज, इट मे बी टोल्ड एज स्टेप्स, प्रोसीजर और प्रोसेस। द वर्ड्स जो आपको अपने क्वेश्चन में देखना वो ये है। तो सबसे पहले आपका जो है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, यू आर डिपॉजिटरी पॉर्टल में आप कोई भी ब्रोकर को सिलेक्ट करते हो, उसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हो। देर आर सो मेनी, आजकल जीरोधा इज वेरी फेमस, ग्रो मोर इज ऑल्सो कमिंग अप, देन पेटीएम इज देयर, ऑल द बैंक्स आर देयर। शेयर खान वॉज, मतलब पहले अर्लियर शेयर खान वॉज वेरी वेरी, मतलब बहुत वो था। तो आपने कर लिया, फिर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। फॉर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट यू नीड पैन कार्ड एज मैंडेटरी, राइट? देन नाउ यू वांट टू बाय द शेयर और सेल द शेयर, तो यू वुड बी कोटिंग द प्राइस कि आपको किस प्राइस पर करना है। तो ब्रोकर ऑन द अदर हैंड ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, so on the other hand जो ब्रोकर है, what he would be doing is they would be taking up your order, आपका ब्लॉक कर देंगे, आपको ट्रांजैक्शन का रिसीट दे देंगे, and then they would be executing the order, and later on within 2 days, 2 days के साइकिल में everything is settled.
So this is the procedure for online trading. As I told you that 1992 स्कैम मूवी जरूर देखना अगर आपको जरा सा भी फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट है तो। स्कैम 92 देखना, एक अभिषेक बच्चन वाली है और एक दूसरी वाली है, दैट इज वेरी नाइस। आई डोंट रिमेम्बर दैट हीरो, प्रतीक बब्बर, आई थिंक मुझे याद नहीं है, बट वो बहुत अच्छी है। मैंने दैट इज बेस्ड ऑन द original scam that happened due to which SEBI was set. That was the period when जो ये शेयर्स में रिगिंग यानी कि प्राइस को रिग करके करना, इस तरीके से दे ऑल थिंग्स वर डन। एंड एट दिस जो प्रॉब्लम थी ये इतनी ज्यादा हो गई थी दैट इट रीच पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट पहुंच गया था, मतलब that became a controversy. It was very difficult क्योंकि इतने लोगों ने सुसाइड किया था। And very big giant company, not to name, but giant companies were directly or indirectly involved. और इसीलिए इन्वेस्टर्स जो थे दे डिड नॉट नो वेदर रियल में, आज तो शेयर मार्केट इज वेरी कॉमन, पीपल लाइक मी, मुझ जैसा बेवकूफ इंसान भी कर लेता है। और देयर आर पीपल दोज हु ट्रेड इन क्रोर्स। मैं तो ऐसा क्रोर्स वोर्स में कुछ नहीं करती हूँ, मेरे पास तो कभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कोई मनी आया तो मैं जस्ट उसको 2 शेयर 3 शेयर ऐसे खरीदता। आई एम नॉट अ रेगुलर ट्रेडर और लाइक दैट। बट यस आई डू वॉच, आई हैव ऑलरेडी डन द कोर्स फ्रॉम, मैंने स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स भी कर रखा है जस्ट फॉर माई इंफॉर्मेशन। बट पीपल नाउ आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर ट्रेडिंग इन क्रोर्स। और आजकल सेफ्टी इज देयर, बट इफ यू टॉक अबाउट दैट पीरियड 1990 से पहले, तो सेबी वो मतलब कि जो उसका नाम क्या, जब सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टर्स मनी वाज नॉट देयर। और इसी मतलब की चीजों को रखकर the safety of the people, then there were malpractices, बहुत सारे अपने मतलब कि internally, like what we call as the malpractices, we call it as insider trading, price rigging। ऐसा नहीं कि अभी नहीं होता, बट अभी कम होता है, और अब पकड़े जाते हैं तो द पेनाल्टी इज वेरी हेवी। इनसाइडर ट्रेडिंग होता है आपका, अगर मुझे पता लग गया कि इस कंपनी मतलब आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और मुझे पता लग गया कि मेरी कंपनी का जो मेरे को बैलेंस शीट्स थे, जनरल मीटिंग हुआ, मुझे पता लग गया मेरे शेयर्स, मेरी कंपनी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, तो एज इन्वेस्टर आई कैन नॉट बाय इट, लेकिन मैं अपने किसी फ्रेंड के थ्रू उसके शेयर्स को खरीद लेती। या ऑन द ऑपोजिट, मुझे पता है कि लॉस हुआ है तो मेरी कंपनी के जो मार्केट शेयर्स हैं वो कम होने वाले, तो मैं बेच देती। प्राइस रिगिंग इज प्राइस को बढ़ा देना। गुरु मूवी देखना अगर आपको इंटरेस्ट हो, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, उसके अंदर यू कैन सी दैट इज एक्चुअली लूजली बेस्ड ऑन धीरू अंबानी, नॉट पूरा नहीं। आप देखोगे पहले क्या होता था, स्टॉक मार्केट वॉज जस्ट लाइक अ फिश मार्केट, बिल्कुल फिश मार्केट, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं था। लोग जो है टेबल के ऊपर चढ़ जाते थे, देयर यूज्ड टू बी एजेंट्स, टट्टूस, और उनको जो है दलाल बोला जाता था, दलाल। और वो लोग क्या करते थे, और इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज का जो नाम है ना, अभी भी अगर आप बोलोगे ना स्टॉक एक्सचेंज का एड्रेस देखोगे ना, दलाल स्ट्रीट है, इट्स कॉल्ड एज दलाल स्ट्रीट, बिकॉज उस जमाने में आपके ब्रोकर जो एजेंट्स होते थे दे वर नॉट रजिस्टर्ड, वो ऊपर खड़े हो जाते थे एंड जानबूझकर अपनी जो कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका दाम ऊंचा ऊंचा बोलते थे, और लोगों को पकड़ते थे कि खरीदो खरीदो, जैसे आलू लो, प्याज लो, बैंगन लो, बोलते ना वैसे। बट लेटर ऑन टू इस चीज को खत्म करके स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपरली आपका दलाल स्ट्रीट पर ही बना था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द फर्स्ट एक्सचेंज विच वॉज बिल्ट अप, देन आपके जो है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज इज देयर, इन ऑल द मेजर सिटीज यू हैव द स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज तो बन गया, उसमें आपकी खरीदना बेचना भी हो गया, लेकिन फिर देन देयर वर सम अदर माल प्रैक्टिसेस, और इसी माल प्रैक्टिस को
खत्म करने के लिए आपका सेबी वॉज फॉर्म अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। आपका जो है, आपके जो सेबी जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया इन 1990। एंड वंस इट वाज एस्टैब्लिश, जब सेबी आपका हो गया, उसके बाद इट हैड 3 फंक्शंस। अब ये जो तीनों फंक्शंस हैं, दे आर एज इंपॉर्टेंट एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द अदर। और ये जो आपके तीनों फंक्शंस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम इन द केस स्टडीज। आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सेबी या फिर वन ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो पहला आपका है रेगुलेटरी। नाउ व्हाट इज रेगुलेशन? घर के अंदर सबके घर में, आई थिंक सबके घर में देयर माइट बी गैस। सबके घर में गैस है, ऐसा तो नहीं कि किसी के घर में उसका नाम क्या, वो लकड़ी के उपले चलते हो, नहीं ना। तो अगर आपने देखा होगा, देयर इज अ रेगुलेटर। सिमिलरली हमारे जो फैंस होते हैं उनमें रेगुलेटर्स होते हैं, और वो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब होता है कंट्रोलिंग फंक्शन। सेबी अंडरटेक्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर्स। सब ब्रोकर्स, पहले कोई भी एजेंट होता था, बट नाउ यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। देन जो कंपनीज म्यूचुअल स्कीम्स को लेकर आना चाहती है, उसको भी सेबी जो है वो मतलब कि अप्रूव करता है। एंड देन इट कीप्स अ वॉच ऑन द एक्टिविटीज, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है बनाती है। एंड ऑल्सो इट सीज दैट दे आर फॉलोइंग दोस रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्लस जैसे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया, प्लीज किसी भी इंडियन बेवकूफ सीरियल को मत देखना कि रात को जो है सो के उठा और सुबह जो है उसकी कंपनी टेक ओवर हो गई। तो ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी टेक ओवर करने में 2 साल लगते हैं मिनिमम। So if a company is taking over another company and there might be कि दोनों कंपनीज अपने बारे में कुछ बात छुपा रही हो, तो दे मेक श्योर, उसके लिए वो रेगुलेशंस रखते हैं कि द कंपनीज आर नॉट हाइडिंग द फैक्ट्स व्हाइल दे आर टेकिंग ओवर। देन टाइम टू टाइम जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और जो ब्रोकर्स हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, इनकी ऑडिटिंग करके चेक करती है हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। प्लस ये सारे काम करती है तो इट ऑल्सो हैज अ फीस, क्योंकि सेबी से हमें रजिस्टर करना पड़ता, सो इट ऑल्सो लिवाइज द फीस एंड ऑल अदर लॉ। कुछ भी उनको लगता है नया लॉ लेकर आना है, तो दे टेक इट अप अंडर द रेगुलेशन एक्ट 56। तो रेगुलेशन इज, याद रखना, कंट्रोल, डेवलपमेंट। एक मतलब कि एक दुकान थी, एक कस्बा था, वहां पर कुछ नहीं था, रोड साइड स्टैंड था, देयर वॉज ओनली वन स्टोर, वन शॉप। 1 साल बाद आप गए तो वहां पर कम से कम 100 दुकानें थी। यानी कि वो एरिया डेवलप हो गया, ग्रो हो गया। तो अब इसको यहां से रिलेट करो। डेवलपमेंट मतलब डेवलपिंग द इंटरमीडियरी स्टॉक एक्सचेंजेस, उनको डेवलप करना बाय गिविंग द मोर इंफॉर्मेशन, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, क्योंकि वो लोग रिसर्च करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे डू द रिसर्च इन द मार्केट, और उसके जो आपके आउटकम्स होते हैं उन्हें पब्लिश करते हैं। दे पब्लिश इट इन द मार्केट, और उस पब्लिशिंग से हमें तो फायदा होता है, इन्वेस्टर्स को। इट ऑल्सो हेल्प्स द पीपल हु आर एसोसिएटेड, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंटरनेट ट्रेडिंग, आईपीओस। मतलब पहले सिर्फ आपके जो है न्यूज़पेपर के थ्रू ही हम लोग जो है प्रोस्पेक्टस इश्यू करते थे, बट नाउ देयर इज अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स को मार्केट में लाना चाहती है, सो इट इज हेल्पिंग इन डेवलपिंग द ओवरऑल कैपिटल मार्केट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ प्रोटेक्टिव, ये हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए।
इसको कैसे याद रखोगे? कोविड में क्या किया था हम लोगों ने? वी यूज टू वियर द मास्क, वी यूज टू कीप द वन आर्म डिस्टेंस, प्रोटेक्ट करते थे। तो प्रोटेक्टिव इज इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। पहला रेगुलेटरी, रेगुलेटरी इज फॉर द, बेटा ये आपको मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, ये पेपर में आता है और यही गड़बड़ करते हैं सारे बच्चे। रेगुलेशन इज फॉर द brokers, sub-brokers, stock exchanges, intermediaries. Development is overall growth of the capital market, and protective is for the common people, investors. So it keeps a check fraudulent insider trade practices, मतलब कि unfair trade practices अगर उनके सामने आता है तो it takes the step. It also, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, चेक्स ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इनसाइडर ट्रेडिंग अभी आपको मैंने बताया। व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? मींस द कंपनीज व्हेन दे कम टू नो दैट, मतलब अगर दे आर द स्टेक होल्डर्स इन अ कंपनी, उस कंपनी के शेयर्स कम या ज्यादा होंगे ऐसा उनको अंदर से खबर मिल गई, तो दे मिस यूज इट फॉर देयर ओन सेल्फिश पर्पस। और जब ऐसा होता है तो उनके ऊपर पेनाल्टीज डालते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इन जनवरी 2 or 3 मेजर वेरी फेमस एंटरप्रेन्योर्स वर पेनलाइज्ड फॉर प्रैक्टिसिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। पेपर में ही था ये, न्यूज़पेपर में। और देन प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग मतलब थ्रू देयर ब्रोकर्स वो लोग जानबूझकर प्राइस को इंक्रीज कर देते। लाइक आजकल वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तो आपको है, आपको पता है, पीपल यूज इट। मतलब दे वुड बी पोजिंग सर्टन थिंग्स कि भाई अपने आप ही हमारे पास वो इमोशनल आ जाता है, प्राइस को रिग कर देते हैं यूजिंग डिफरेंट वेज। एंड उससे क्या नुकसान होता है? जैसे पेपर के मतलब पेपर में लिखा होता है ये वाला पर्टिकुलर जो पेपर, मतलब न्यूज़पेपर, कि ये वाला जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी इतनी सब्सक्रिप्शन हुई है, लोग पागलों की तरह उसमें सब्सक्राइब करते हैं। दैट्स, आप प्राइस को रिग कर रहे हो। तो उस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान लगाती है। इट मेक्स, मतलब कि वो टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स को जो है थ्रू पीरियोडिकल्स, थ्रू न्यूज, दे गिव दिस इंफॉर्मेशन। एंड इसके लिए उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह बना रखा है जिससे कि इन्वेस्टर्स आर, जैसे वो कहते हैं ना, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो दे गिव एडवर्टीजमेंट्स, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टर्स। और अभी ये जो माल प्रैक्टिसेस हैं, दे हैव कम डाउन टू अ, मतलब बहुत कम हो चुका है। इफ आई टॉक अबाउट दैट एरा एंड नाउ, इट्स रादर वेरी, अब मतलब कि मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ, मतलब कि अभी जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। चाहे अब स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स हो, लेकिन होता है। पहले लोग जो है शेयर मार्केट में नहीं डालते थे, शेयर मार्केट का दूसरा नाम होता था भैया डूब जाओ। अभी भी ऐसा है, देर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर भी अलग अलग ट्रेडिंग होती है। लाइक एक होता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब, इंट्राडे में क्या होगा, आपने सुबह शेयर खरीदा, आपको शाम तक बेचना पड़ेगा। और अगर आपने 100 रुपए का खरीदा है और आप उम्मीद लगा रहे हो कि भाई 200 रुपए में जाएगा, और आपने कोट कर रखा 200, लेकिन अगर 150 में गया तो आपको, मतलब कि अगर वो 75 75 में भी गया तो आपको बेचना पड़ेगा। दैट इज 1 डे ओनली इट इज अलाउड। तो आपका 25 रुपए का नुकसान हो गया। तो अभी भी होता है, बट नाउ देर आर सो मेनी वेज। इवन जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अपने वेबसाइट्स पर देर आर सो मेनी ब्लॉग्स, पिक्चर्स, मीम्स, आपके वीडियोस हैं जिसके थ्रू दे ट्राई टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट। आपको जो है दे गिव यू द इंफॉर्मेशन, आपको वो इंफॉर्मेशन, मतलब कि पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो पैसा है दैट शुड नॉट बी लॉस्ट। So SEBI is taking all kinds of matlab ki functions. First is the regulatory, second is the development, and third is the protective function, so that the investors do not get easily trapped. So this is what the entire chapter is, what we call as financial markets. Right? I'll just
गेट यू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से यू नीड टू फर्स्ट, मतलब कि आपको याद करना ही करना है कह लो, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट कह लो. द फर्स्ट इज द difference between money market and capital market. Instruments as such your syllabus it is not there, but I did, मतलब मैंने फिर भी करवा दिया था क्योंकि लास्ट ईयर देयर वाज द वन मार्क क्वेश्चन, वन मार्कर क्वेश्चन आपका था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का. देन अगेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज. थर्ड इज बहुत रेयर है लेकिन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज जो है जहां पर आपके सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड बॉट. इट इज वेयर द इक्विटी कल्ट इज देयर. नए प्लेयर्स पुराने प्लेयर्स दोनों को बराबरी मिलता है. इट हेल्प्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, इट हेल्प्स इन द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट. जैसे मैंने पहले बताया कि पहले कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं हुआ करता था, तो लोग जो है वो लोग मार्केट में सेल करते थे. दैट इज वाई स्टॉक एक्सचेंज का जो नाम था वो भी आपका दलाल स्ट्रीट है, बिकॉज अर्लियर इट वॉज ओनली द दलाल्स, जो बीच में आपके दलाल होते थे. अब वो दलाल नहीं है. नाउ दे आर कॉल्ड एज ब्रोकर, सब ब्रोकर्स. दे आर रजिस्टर्ड, दे आर नॉट नॉन रजिस्टर्ड. उनकी पूरी रजिस्ट्रेशन होती है, देन ओनली दे आर एबल टू वर्क अंडर दिस प्लेटफॉर्म. देन आपका आता है जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर द प्रोसेस और द स्टेप्स फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग या मतलब कि सेलिंग और बाइंग द सिक्योरिटीज. एंड देन द फंक्शंस ऑफ सेबी. इसको जो है दे में भी गिव, मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आया हुआ है. नॉर्मली एक फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं और बाकी दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाता है. So these are the most important questions from this chapter. ऑनलाइन ट्रेडिंग में 2 स्टेप्स एंड 4 आपको लिखने के लिए बोल सकते हैं, या फिर इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन. देन व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन, कीपिंग द सर्टिफिकेट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ये आपका 1 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है. दीज आर ऑल 1 मार्कर. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका सबसे ओल्डेस्ट है, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1800s. That is one of the oldest one, but we have stock exchange all over India. अब ये हमारे ऊपर है, हम कहाँ लिस्ट करते हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज. एंड अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे तो यू विल सी इट इज, पहले तो बहुत ही भीड़ भाड़ होती थी, अभी क्या होता है इट्स क्वाइट सॉर्टेड. एक आपका एलईडी स्क्रीन चल रहा होता है, उसके अंदर आपकी सारी कंपनी जो लिस्टेड है उनके सारे के सारे जो है उस पर्टिकुलर टाइम पर व्हाट इज मतलब कि उस वक्त में क्या उसकी रेट है, मार्केट शेयर है, वो वहां पे हो रहा होता है. एंड नाउ ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम. So anyone now everything is done only through the computer system. So जो आपके पहले माल प्रैक्टिसेस वगैरह होते थे that have been reduced to a. That's all in the chapter financial markets. This chapter particularly I'll say it is not a chapter which is for business studies. It is a chapter for all of us. Last year I had a very good student and he used to, you know, he was so much indulge in that. उसको पापा बहुत खरीदते बेचते हैं, तो he would tell me, मैम you know this ये वाला आया है, मैम ये आया है, ये वाला आया है, and he was very much interested. So it is a day to day one. We all must know whether we are investing or not, but we must know as a shareholder. आपको एक स्टार्टिंग में एक मैंने पिक्चर दिखाई थी कि जो कॉमन पीपल होते हैं, हम लोग होते हैं, हमारे सेविंग्स जो है ईदर वी पूल इट इन द बैंक, और बैंक इनमें से कुछ पैसों को म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर क्रेडिट के थ्रू बिजनेस में डालते हैं, और वी मे डायरेक्टली ऑल्सो इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. और जब कंपनीज उनको यूज करती हैं तो थ्रू द डिविडेंड दे गिव बैक, एंड बैंक्स को वो लोग जो है इंटरेस्ट देते हैं, उसमें से थोड़ा इंटरेस्ट हमें मिलता है. तो ये पूरा एक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो उसको मतलब कि ग्रो करने में हेल्प करता है. दैट इज आपका फाइनेंशियल मार्केट्स.